When we discuss electrochemistry, we need to see the difference between electrolysis and simple cell. That will help you understand both the topics. When it comes to electrolysis, current is passed to split the ionic compound into positive and negative ions. So electrolysis में movement of क्या होता है हमारे पास? This is the major point between the two topics that when we discuss about, sorry, my, hold on. Okay, when it comes to electrolysis, it is the movement of positive and negative ions. But when we're talking about simple cell, it is the movement of electron across the electrodes. कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का सेल बना हुआ है तो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस क्या होगा? ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनोड, कैथोड। अब यहीं पे साथ में हम वो पॉइंट रिव्यू कर लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू एनोड एंड कैथोड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की जो वो होती है हमारे पास मूवमेंट। सो जो एनोड के टुवर्ड्स मूव करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एनाइंस, एंड दे आर नेगेटिव आयंस। एंड तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव इन द reactivity series would move towards it. Whereas the ions which are moving towards cathode are cations, they are positive, and least reactive जो है वो move करता है उसके cross. Least reactive would move towards cathode। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज दैट? रिडॉक्स की बेसिस के ऊपर एनोड एंड कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होता है? Oxidation happens at cathode and reduction happens at anode. वेरी गुड। एंड व्हाई इज दैट? कि अगर हम लोग उसकी हाफ आयनिक इक्वेशन लिखें, सो अ नेगेटिव आयन would move towards an anode and would give up the electron। एक कैथोड की इक्वेशन, सॉरी मैंने ऑपोजिट लिख दिया। कैथोड के ऊपर क्या मूव करेगा? A positive ion would go towards a cathode. It would accept an electron and would be converted into a neutral one. So acceptance of electron is known as reduction. So reduction takes place at cathode and oxidation takes place at anode. Because a negative ion would go towards an anode, it will be converted to a neutral one and two electrons. So electron is given out. When electron is to the right of the equation, it means it's given out. इनको half ionic equations कहते हैं। Half ionic equations of electrolytic cell. So this loss of electron is named as oxidation. And a reaction in which oxidation and reduction is occurring at the same time is known as redox reactions. So that's pretty much what electrochemistry is about. The next important thing is K react react. Wait. Hmm. Second. Sorry. I want to
So when it comes to redox reactions, we utilize the term oil rig. Oil oxidation is loss and reduction is gain of electron. Since we are doing this part, तो oxidation reduction का meaning भी यहाँ पे discuss कर लेते हैं कि how can we identify whether a reaction is an oxidizing one or reduction or reducing. So in order to identify whether a certain element is oxidize हो रहा है या reduce हो रहा है, we have certain parameters. First one is oxidation is loss of electron, as explained right now. Gain of hydrogen, loss of oxygen, and increase in oxidation state. It's I will gain of explain oxygen. I'll explain all of it with respect to example as well. Yes, sorry. Gain of oxygen, loss of hydrogen, and gain of oxygen. Thank you. And it's the opposite for reduction. Reduction is gain of electron, gain of hydrogen, loss of oxygen, and decrease in oxidation state. Now, do you remember what oxidation state is? Do I need to explain this part or it's okay and we can go to the next one? Yeah, there was a formula. Oxidation का formula नहीं होता कोई भी. Oxidation I is mean, just oxidation that just shows the valency of the atom. Yeah, how much electron it has gained or lost. It has nothing to do with that. So should I explain this part as well, or just we could skip that? मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये सारे Can you पॉइंट्स जो हम solve लोग one? डिस्कस, हाँ, जो ये पॉइंट्स डिस्कस करें इनका मीनिंग है क्या हमारे पास. ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने हाफ आने की क्वेश्चन के थ्रू आपको शो कर दिया हुआ. ठीक है, राइट है, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया. ये गेन एंड लॉस तो हमने यहाँ पे शो कर दिया हुआ. ठीक है, इफ वी हैव अ सर्टेन इक्वेशन, नाउ लेट्स सी लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन की बेसिस के ऊपर. ठीक है, let's write the equation. We have H2S and that reacts with chlorine gives S plus HCl. अब इसमें तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे. I'll try कि तीनों पॉइंट्स में कवर अप हो जाए. We will clearly see कि सल्फर के साथ on this side we have hydrogen attached but it does not have any hydrogen attached to it, which means ये क्या हुआ है? Oxidize. Okay. एक और भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है. यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में थी एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो जस्टिफाई कि ऑक्सीडाइज हुआ है. वी नो दैट ना कि here H would have a positive valency and S would have a negative valency. सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे जस्टिफाई हो गया. अब यहाँ पे
क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, कॉज इट्स एग्जिस्टिंग एज एन एलिमेंट, एंड यहाँ पे वो एज अ नेगेटिव आ रहा है। सो 0 टू नेगेटिव जब जाते हैं तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड एज रिडक्शन। एक और पॉइंट भी है रिडक्शन को शो कर रहा है कि इसने हाइड्रोजन को क्या किया है? गेन किया है। सो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिक्रीज आया, वो भी यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली उसके लिए हम अलग एक एग्जांपल कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एक क्वेश्चन है, Mg plus Cl2 becomes MgCl2। अब यहाँ पे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं? 0। हाउ डू वी नो दे हैव अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट? दैट मींस जब वो न्यूट्रल स्टेट्स में होते हैं और सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एज एन एलिमेंट फॉर्म, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0। ओके। अब यहाँ पे क्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट of negative and magnesium has a oxidation state of positive. अब how do we know कि magnesium is positive and chlorine is negative? So we know that कि non metals जो होते हैं they tend to gain electrons, and जो metals होते हैं they tend to lose electron. Also how oxidation state हमें कैसे पता लगती है उनकी? वो हमें ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर इज डिफरेंट थिंग। वी नो दैट कि मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप 2, एंड ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव 1 टू +4 होते हैं। सो मैग्नीशियम लाइन ग्रुप 2, विच मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। अब यहाँ पे राइटिंग राइटिंग इक्वेशन का भी आ जाता है, साथ में टॉपिक रिवाइज हो जाता है कि MgCl2 cause magnesium has an oxidation state of +2 and Cl has an oxidation state of -1. When these are cross multiplied, we get MgCl2, the formula that we're getting here. Now let's get back to redox. यहाँ पे वो 0 था, यहाँ पे ये +2 में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? ऑक्सीडेशन स्टेट Increase. इंक्रीज्ड। सो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज। एंड यहां से ये 0 से नेगेटिव में गया है क्लोरीन। क्लोरीन फ्रॉम 0 टू नेगेटिव गया, सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? डिक्रीज। क्लोरीन की लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, इट मींस ये क्या हुआ? रिड्यूस। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो मटेरियल्स ऑक्सीडाइज होते हैं दे एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और जो मटेरियल्स रिड्यूस होते हैं दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? दे विल हेल्प अदर एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होगा? दे विल हेल्प अदर एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, oxidizing and reducing agent. Normally, they are only you do not need to memorize all of the oxidizing and reducing agents, but in order to identify कि जी ऑक्सीडेशन जो है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं, तो जो टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास आता है दैट इज, लेट मी टेक यू टू, नो आई डोंट हैव दैट बुक। There was this book in which they have shown the results, but let me write it down for you. I don't have that book with me right now, nor I have it in PDF. So let's go to, where is purple? Hey. So ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास, नो इट्स टू डार्क,
This is a good color as well. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास एग्जांपल आती है आयोडीन की, पोटेशियम आयोडाइड। So, if the unknown solution to the unknown solution will add drops of potassium iodide, and if it changes its color to from colorless to brown, it means that unknown solution is oxidizing in nature. And how would we know that? कि जो आयोडाइड के जो आयन होते हैं, आयोडीन आयन जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। और जो आयोडाइड होता है, आयोडीन सॉरी, दैट्स ब्राउन इन कलर। सो इसने, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प्स टू, क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन। सो Lose आयोडीन से इट electrons. बिकम्स आयोडाइड आयन। So this means K, that unknown solution is an oxidizing agent. So this is the test for identifying an oxidizing agent. एक और भी है, into which हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक starch iodine paper लेते हैं, वो use a starch iodine paper, and if it changes its color to blue, पहले वो न्यूट्रल होगा, कोई कलर नहीं होगा, बट इफ इट चेंजेस इट कलर टू ब्लू, iodine would react with starch to give a blue color. That's how these two tests we can use to identify an oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बता दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? दैट हेल्प्स टू Helps other लूज substances इलेक्ट्रॉन, lose ठीक electrons. है। एंड व्हेन इट कम्स टू But रिड्यूसिंग it's एजेंट, यस, also like when a substance की gets आवाज कटती reduced, है। right? कम अगेन। It's when a substance gets reduced. हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता Isn't है it when isn't वो it when इटसेल्फ क्या होता है? वो रिड्यूस होता है। a substance gets और reduced? जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है So how is it वो इटसेल्फ क्या होता है? इट गेट्स ऑक्सीडाइज। ये वाला पॉइंट आई गेस आप पूछ रही हैं, oxidized? राइट? Yeah, but so सो when आप you ऊपर said वाली that it एग्जांपल में helps देखें, like आप ऊपर वाली lose एग्जांपल में देखें। electrons when it's हाँ, ये इसने इसने लूज इलेक्ट्रॉन किया है, ठीक हो गया। सो ये इटसेल्फ क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। mm, सो दैट्स व्हाई इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। but loss of electrons is oxidation. हम्म। तो वो So how is मटेरियल, it an oxidizing? वो मटेरियल ऑक्सीडाइजिंग, जो था वो रिड्यूस हो रहा है ना खुद से। वही वाला पॉइंट आ गया ना कि इटसेल्फ जो रिड्यूस हो रहा है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा फॉर द अदर मटेरियल। यही पॉइंट सबसे पहले हमने आपको बताया था आपको, कि वो मटेरियल जो Mm, अननोन मटेरियल था वो इटसेल्फ रिड्यूस हुआ है, इसको वो ऑक्सीडाइज करेगा, हेल्प्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। okay. डेफिनेशन यही है ना, मैं लिख भी देता हूं फॉर यू, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है
oxidizing agent reduces oxidizing agent oxidizes an other substance and is reduced in the process. अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया था? आयोडीन को यूज किया था टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर अननोन सोल्यूशन इज ऑक्सीडाइजिंग और नॉट, और उसने इसको हेल्प आउट किया ऑक्सीडाइज होने में। वही डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस एनदर। अब यहाँ पे एनदर हमारे पास क्या था? पोटेशियम आयोडाइड था एनदर सोल्यूशन, ठीक है। एंड ऑपोजिट जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका यहाँ पे, सो जो रिड्यूसिंग एजेंट reduces an other substance and is oxidized in the process। अब यहां पे हम लोग यूज करते हैं KMnO4 को, KMnO4 को, ठीक है। अब NO4 हमारे पास वो सब्सटेंस है, अब यहां पे ये क्या है? नेगेटिव स्टेट में, पोटेशियम के स्टेट में, पॉजिटिव स्टेट के अंदर, ठीक है। अब अगर MnO4 ने क्या होना है? रिड्यूस होना है, विच मींस इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो MnO4 प्लस H positive plus electrons would give us manganese 2 positive प्लस 4H2O। बैलेंस कर देता हूँ इस इक्वेशन को। MnO4 प्लस 8H positive प्लस 5 electrons gives Mn2 positive प्लस 4H2O। अब देखो इन द प्रोसेस मैंगनीज आयन नेगेटिव से किस स्टेट में चला गया? पॉजिटिव स्टेट में चला गया बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट रिड्यूसेस अनदर एजेंट और इटसेल्फ वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे? ये इलेक्ट्रॉन उस अननोन सोल्यूशन नहीं दिए होंगे ना इसको, ठीक है। So, in order to identify a reducing agent, we use KMnO4, or if solution turns from purple to colorless, it means that particular unknown solution in which we have put the drops of KMnO4 is basically an oxidizing agent. Oh, sorry, reducing agent. Now let's get back to the क्या कहते हैं क्या कहते ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कर लेते हैं, एंड उसके बाद स्ट्रेट अवे बैक टू उस टॉपिक पे जाते हैं जहां पे हम लोग, जो टॉपिक हमने एक्चुअली में स्टार्ट किया था, विच वाज इलेक्ट्रोलिसिस। सो अगर हमारे पास कोई भी सेक्शन दिया है उन्होंने, फॉर एग्जांपल N2O5, ठीक है, दे आस्क अस टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इनटू दैट। अब ये कंपाउंड है विद अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या +1 होती तो वो साथ में मेंशन आउट करते हैं। इफ नथिंग इज गिवन अबव, इट मींस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। अब मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। I have 2 nitrogens, I'll write 2x plus how many oxygens do I have? 5, and oxidation state of oxygen is -2 is equals to 0। अब यहाँ से 2x equals to 10 and x equals to क्या आ जाएगा? 5। ठीक हो गया, विच मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है? 5। और अगर हम देखें y ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, तो वो जस्टिफाई हो रहा है कि N2O5, मैं इसको सेपरेट आउट लिख देता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है? -10। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है? +10। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल हैव अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की, क्या आई? 5, एंड 2 नाइट्रोजन मीन्स 2 into 5 +10, 5 oxygens mean 5 into 2 -10।
दैट्स हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव NH4 पॉजिटिव, अब दिस मीन्स Hmm. कि हमें अगेन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेटस में फाइंड आउट करनी है. अब आई ओनली हैव वन नाइट्रोजन, सो आई सिंपली राइट x. आई हैव फोर हाइड्रोजन, so 4 into 1 equals to +1 बिकॉज उसने हमें पॉजिटिव दिया हुआ है ऊपर. ठीक हो गया. सो x would be equals to 1 minus 4 which is equals to -3. So x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? -3. Wait, I can't see your screen. You can't see my screen? Can you see it Yeah. now? Can you call me? Cause मीटिंग एंड होने वाली है. इलेक्ट्रोलिसिस को मैं फिर उसी पोर्शन में कंटिन्यू करता हूँ. अच्छा, when it comes to electrochemistry हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज मोल्टन. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि electrolysis could only be done for ionic compounds, and and when it comes to ionic compound, they could only conduct when they have either when they're in molten state or aqueous state, because only in these two states ions will be free to move across the वो. बाकी electrolytic cell electrolysis is a process. Electrolytic cell is the cell in which the electrolysis is done, and electrolyte and everything. So ions will be free to move. So when it comes to molten, whenever we have a molten ionic compounds, we would only have two ions present, one positive and one negative, and the product will always be, for example, we have NaCl, KCl, or any other product in molten form, then we will only have a one positive ion and one negative ion. ठीक है? So वही उन पे फॉर्म होंगे. दैट इज कि Na would be produced at, इसकी हाफ आने की क्वेश्चन क्या होगी? Na would accept an electron and would become an Na at cathode, and Cl negative would become Cl2 by giving two electrons at anode. Similarly, अगर KCl या KBr है, ठीक है? So K positive plus electron gives K, and Br negative would be Br2 plus 2E negative. इनको हाफ आने की क्वेश्चंस ऑफ कहते हैं. इनको आपने अपने माइंड में रखना है. ये अगेन जब इलेक्ट्रॉन इज टू द लेफ्ट वो हमेशा कैथोड की हाफ आने की क्वेश्चन होगी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टू द राइट वो हमेशा एनोड की हाफ आने की क्वेश्चन होगी. सो व्हेनेवर वी डिस्कसिंग अबाउट क्या कहते हैं मोल्टन कंपाउंड्स, तो मोल्टन कंपाउंड्स में हमेशा हमारे पास सर्टेन प्रोडक्ट आएगी विच वुड बी अ पॉजिटिव आइन एट क्या कहते हैं उसको, एट कैथोड एंड नेगेटिव आइन एट एनोड. देन हमारे पास जब एक्वस सॉल्यूशंस आते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस में हमने उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वेदर दैट एक्वस सॉल्यूशन इज, एक्सक्यूज द स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग लिखने का था. जब when it comes to aqueous solutions, either we have dilute solutions or concentrated solution. But before diving into this topic, जब भी हम dilute and concentrated solutions में आएंगे, aqueous solutions में आएंगे, we have to follow the reactivity series. जो हमने previously बात किया कि अगर पॉजिटिव आइन होगा, जैसे हमने वो यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव आइन है एनोड के ऊपर, तो हमारे पास कौन सा जाएगा? लीस्ट रिएक्टिव टू द कैथोड. ठीक है? और नेगेटिव आइन है तो मोस्ट रिएक्टिव जाएगा. अब हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, तो वो हमें रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प आउट करती है. ऑलवेज रिमेंबर
कि जब भी हम रिएक्टिविटी सीरीज फॉर पॉजिटिव आइंस करेंगे, सो जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो हमें पता है वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं हमारे पास। एल्युमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, copper and silver. So reactivity series would decrease here. So अगर जिंक एंड हाइड्रोजन है तो हमारे पास कौन डिपॉजिट होगा? H पॉजिटिव। अगर एल्युमिनियम एंड जिंक है तो कौन डिपॉजिट होगा? जिंक। अगर मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम है तो कौन डिपॉजिट होगा? एल्युमिनियम। अगर सोडियम एंड मैग्नीशियम है तो कौन डिपॉजिट होगा? मैग्नीशियम। जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उस पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉजिटिव आइंस के अंदर, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, वो हमारे पास जो है वो क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे वहां पे जाके। ठीक है। एंड इफ वी हैव, ये थी पॉजिटिव आयन की रिएक्टिविटी। अगर नेगेटिव आयन्स हैं तो हमें पता है कि हेलोजन सबसे रिएक्टिव होते हैं हमारे पास। सो SO4 -2, NO3 -1, OH negative, Cl negative, Br negative, iodine negative. So more likely to be discharged इस तरफ आएगा। So अगर SO4 and NO3 है तो कौन डिपॉजिट होगा? NO3। अगर NO3 and OH नेगेटिव है तो कौन डिपॉजिट होगा? OH नेगेटिव। अगर OH and Cl नेगेटिव है तो कौन डिपॉजिट होगा? Cl नेगेटिव। Cl and Br है तो Br डिपॉजिट होगा। एंड अगर Br and आयोडीन है तो आयोडीन। क्योंकि when it comes to negative ion, most reactive would move towards anode, और पॉजिटिव आयन में जो वो लीस्ट रिएक्टिव होता है दैट मूव्स टूवर्ड्स कैथोड। सो अगर हम NaCl की सॉल्यूशन को डिस्कस करें, वन इन कंसंट्रेटेड फॉर्म और वन इन डाइल्यूट फॉर्म, सो नंबर ऑफ आइंस दोनों में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नंबर ऑफ आइंस का मीन मतलब टाइप ऑफ आइंस, कौन कौन सा आइन होगा? Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, सो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आइन होगा वो तो हमेशा H पॉजिटिव ही होगा, अनटिल अनलेस जो भी है। तो हमारे पास, मैं नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वो लिख देता हूँ, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है। तो जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो हमारे पास H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जाएंगे, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मेरे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन जाएगा। Why OH नेगेटिव आइन? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इन द सॉल्यूशन वुड बी लेस। तो वो होगा ही लेस, तो उसके अगेंस्ट कौन सा हमारे पास मोर लाइकली टू बी डिस्चार्ज है? OH नेगेटिव आइन। तो अब इनकी हाफ आने की क्वेश्चंस क्या बनेंगी? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 gas, and 2Cl negative gives Cl2 plus 2 electrons. On the contrary, अगर हम dilute solutions की बात करेंगे, H positive की इक्वेशन वही रहेगी, 2H positive plus 2 electrons gives H2, and 4OH negative gives 2H2O plus H2 plus 4 electrons. ठीक हो गया। अब ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की भी हो गए हैं। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम लोगों को इलेक्ट्रोड्स कौन सी यूज करने हैं। ठीक है, हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। व्हाई दे आर यूज्ड? बिकॉज दे डू नॉट Don't react. टेक पार्ट इन द प्रोसेस। और टू ही इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं पॉसिबली हमारे पास, कौन से होते हैं? ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम का। प्लैटिनम एक्सपेंसिव पड़ता है हमारे पास तो हम ग्रेफाइट को प्रेफर कर देते हैं। दे ओनली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आइंस, बट वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं इन द रिएक्शन। अगर हम There's लोग, something. जी, वो कॉपर Nothing. सल्फेट के अंदर आता है ना, वो तो हमारे पास फिर टू टर्म्स होती हैं, एक रिफाइनिंग होता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि Yeah. इलेक्ट्रोलिसिस की भी फर्दर टू एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे हम उनको अप्लाई करते हैं। वन इज हमारे पास रिफाइनिंग एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Electroplating is a process in which an expensive metal is deposited onto a cheaper one.
सो जो एक्सपेंसिव मेटल होता है इट्स ऑलवेज मेड अप ऑफ इट्स ऑलवेज मेड एनोड। एनोड एक्सपेंसिव का होगा एंड कैथोड किसका होगा? चीपर। बस आपको ये अपने माइंड में रखना है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी हमेशा किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट वुड ऑलवेज बी ऑफ द एक्सपेंसिव मेटल का, सॉल्ट soluble इन वाटर होगा हमारे पास। whereas when it comes to रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में ऑपोजिट होता है। एनोड वुड बी ऑफ अनरिफाइंड मटेरियल होगा। कैथोड हमारे पास किसका होगा? प्योर मेटल का। एंड इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा? सॉल्ट का। सॉल्ट ऑफ, बल्कि जब रिफाइनिंग होती है उसमें सब सब एक ही मटेरियल का होता है। सो इफ वी डिस्कस अबाउट कॉपर, कॉपर की प्लेटिंग डिस्कस कर लेते हैं ऑन ईदर साइड। सो हम कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होगा हमारे पास एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स होंगे। जो अनरिफाइंड होगा वो क्या हमारे पास होगा? इट वुड बी मेड अप ऑफ एनोड, और रिफाइंड बनेगा कैथोड, और प्योर। सो इवेंचुअली जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है एनोड लूजेस इट्स मास एंड कैथोड गेन्स द मास। सो अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, सो मूवमेंट हमारे पास क्या होगी? कॉपर के ही आयंस होंगे हमारे पास। सो द कॉपर फ्रॉम द एनोड वो क्या करेगा? इट वुड गो इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, Hmm. एंड वुड become a positive ion and loses electron, and copper positive 2 plus 2 electrons become copper। ये कहाँ पे हो रहा होगा? कैथोड पे, and this would be anode। So eventually anode would lose its mass and would become as a copper ion, or as cathode would gain its mass, और वही। अब total concentration of copper in solution remains same, because number of copper ions But what do you going into mean by solution, copper ion going into solution from anode would be equals to copper ion going to cathode. So total copper ion concentration in the electrolyte would remain same. What was your question? unrefined anode? मतलब अनरिफाइंड, मतलब अगर हम कॉपर की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो जो इम्प्योर कॉपर होगा दैट वुड बी मेड एनोड एंड प्योर कॉपर वुड बी मेड कैथोड। Okay, and how does it lose its mass? वो एज एन आइन सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है, एंड Hmm. फ्रॉम सोल्यूशन कॉपर वुड मूव टुवर्ड्स कैथोड। सो इवेंचुअली ऑल ऑफ द एनोड जो कॉपर उसके अंदर होगा, कॉपर वुड गो इनटू द सोल्यूशन एंड प्योर कॉपर वुड बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। सो जो फिर रिमेनिंग हमारे पास इम्प्योर रह जाएगा, जो भी चीज होगी हमारे पास। And as soon as the copper Okay. loses its mass to a value कि it comes out of the electrolyte, तो वो solution फौरन से क्या हो जाएगा? प्रोसेस फौरन से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। Okay. और फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि सेल्स क्या थे। हमने सेल्स हमने पढ़ा था कि जो केमिकल सेल, सिंपल सेल किसको कहते हैं? कि जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं अगेन रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है कि जितना ज्यादा टू आइंस के दरम्यान में रिएक्टिविटी सीरीज की बेसिस पे डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास जो है वोल्टेज जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं जो हमने नॉर्मली पढ़ी हुई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड सिल्वर आता है गैस, ठीक है। वी नो दैट कि अपवर्ड जाते हुए रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। Increase.
सो अगर हम लोग एक सेल डिवाइस करते हैं, यहाँ पे हम वोल्टमीटर अटैच कर देते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं सच दैट के ठीक है। अब जो मोस्ट रिएक्टिव होता है आइन, मोस्ट रिएक्टिव जो होगा, दैट वुड एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल। और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, it would become the negative electrode and would accept the electron. That is के movement of electron कहाँ से कहाँ होंगी? Movement of electron would be from most reactive Negative. to least reactive. For example, हम लोग zinc and copper को use करते हैं. One is zinc and one is copper. If we would know the reactivity series, तो हम लोग देखेंगे कि zinc is above copper, which means zinc would be the one which would be giving electron and copper would be the one which would be accepting electron. So movement of electron कहाँ होंगी from zinc to copper. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन द टू आइंस, उतना ज्यादा ही वोल्टेज हमारे पास जनरेट होगा. दैट इज, अगर हम एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि वी वुड हाउ कैन वी इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, तो हम लोग कहेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर उनका डिस्टेंस जो है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे. दैट इज हम पोटेशियम एंड कॉपर को ले लेंगे. अगर हम पोटेशियम एंड कॉपर को लेंगे तो हमारे पास वोल्टेज जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, बिगर आएगा, क्योंकि उनके दरम्यान में डिफरेंस ज्यादा है. अगर मैं सोडियम एंड कैल्शियम को ले लेता हूँ, हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. बट अगेन calcium would be the one who would be accepting electron and sodium would be the one who would be giving electron. So अगर हम इसकी हाफ आने की क्वेश्चन लिखें तो Zn plus Cu2 positive would be Zn2 positive plus copper. Cause इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया, जिंक ने, cause वो मोस्ट रिएक्टिव था, एंड कॉपर ने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया. सो ये हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज. और हमने वैसे भी मेटल्स के चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, इट वुड टेंड टू बी टू स्टे एज एन आइन रादर देन एज एन एटम. तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए. दैट्स इट. That's all for electrolysis. I already have uploaded few of the lectures of electrolysis before, so you could also review those lectures from there as well.